مردان میں بارش نے انتظامیہ کی کارکردگی کا پول کھول دیا، متعدد علاقوں میں بارش کا پانی جمع، شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا، علاقہ مکین انتظامیہ کے خلاف سراپا احتجاج، مظاہرین کا کہنا ہے کہ انتظامیہ کی جانب سے کوئی اقدامات نہیں کیے جا رہے۔ سجاول میں طوفانی بارشوں سے تباہی، شہر کے مختلف مقامات پر بارش اور سیوریج کا پانی جمع ہونے سے شہری پریشان، پاک نیوی کی جانب سے ہیوی مشنری کی مدد سے نکاسیات کے عمل کو یقینی بنانے کے اقدامات، شہریوں کا پاک نیوی کو خراج تحسین۔ سرگودا کے علاقہ منکیرا میں 3 افرادی قتل کا معاملہ، پولیس نے ملزم جاوید اقبال کو گرفتار کر کے اسلحہ برآمد کر لیا۔ آر پی او سرگودا عمران محمود نے ملزم کی جلد از جلد گرفتاری کا حکم دیا تھا۔ ملزم نے اراضی کے تنازع پر اپنے مخالفین کو قتل کیا تھا۔ قصور میں کھڈیاں دیپالپور روڈ پر تیز رفتار ڈمپر کی موٹر سائیکل پر سوار کو ٹکر، حادثے کے نتیجے میں موٹر سائیکل سوار زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے موقع پر ہی دم توڑ گیا۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ دیپالپور روڈ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہونے کی وجہ سے حادثات معمول بن چکے ہیں۔ اوکاڑا کے نواحی گاؤں میں لڑکی کو مبینہ ہراساں کرنے کا معاملہ، جھگڑے کے دوران فائرنگ سے ایک شخص جاں بحق، 3 افراد زخمی ہو گئے۔ ملزمان فرار ہونے میں کامیاب، زخمیوں کو اسپتال منتقل کر دیا گیا، پولیس نے مقدمہ درج کر لیا۔ اور خوشاب میں بجلی کے بلز میں اضافی ٹیکس کے خلاف شہریوں اور تاجر برادری کا احتجاج، مظاہرین نے حکومت کے خلاف شدید نعرے بازی کی۔ مظاہرین کا کہنا تھا کہ اگر اضافی ٹیکس ختم نہ کیا گیا تو شٹر ڈاؤن ہڑتال کی جائے گی۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، بلیٹن کے آغاز میں سب سے پہلے آپ کو بتائیں سجاول میں بارشوں نے تباہی مچا دی، شہر کے مختلف مقامات پر بارش اور سیوریج کا گندا پانی جمع ہونے سے شہری پریشان ہیں، اہل علاقہ مختلف بیماریوں میں مبتلا ہیں۔ پاک نیوی نے ہیوی مشنری کی مدد سے نکاسیات کے عمل کو مکمل کیا ہے۔ پاک نیوی کے اس اقدام کو سجاول کے شہریوں نے خوب سراہا ہے۔ اوکاڑا کے نواحی گاؤں میں لڑکی کو مبینہ ہراساں کرنے کا معاملہ، جھگڑے کے دوران فائرنگ سے ایک شخص جاں بحق، 3 افراد زخمی ہو گئے۔ ملزمان فرار ہونے میں کامیاب، زخمیوں کو اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے۔ جاں بحق شخص کی شناخت مدثر کے نام سے کر لی گئی ہے، جبکہ زخمیوں میں شاہد، زمان اور مظفر شامل ہیں۔ سرگودا کے علاقہ منکیرا میں 3 افراد کے قتل کا معاملہ، پولیس نے ملزم جاوید اقبال کو گرفتار کر کے اسلحہ برآمد کر لیا ہے۔ آر پی او سرگودا عمران محمود نے ملزم کی جلد از جلد گرفتاری کا حکم دیا تھا۔ پولیس کے مطابق اراضی کے مبینہ تنازع پر جاوید اقبال نامی ملزم نے اپنے مخالفین متا حسین، محمد خان اور طاہر کو فائرنگ کر کے قتل کر دیا تھا۔ قصور میں کھڈیاں دیپالپور روڈ پر تیز رفتار ڈمپر کی موٹر سائیکل سوار کو ٹکر، حادثے کے نتیجے میں موٹر سائیکل سوار زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے موقع پر ہی دم توڑ گیا۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ دیپالپور روڈ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہونے کی وجہ سے حادثات معمول بن چکے ہیں۔ سرائے عالمگیر سے تعلق رکھنے والے کمسن بچے کی مدینہ منورہ میں عمران خان کی دوبارہ وزیر اعظم بننے کی دعا، محمد عبداللہ نامی بچے کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی ہے۔ خوشاب میں بجلی کے بلز میں اضافی ٹیکس کے خلاف شہریوں اور تاجر برادری کا احتجاج، مظاہرین نے ہاتھوں میں بجلی کے بل اور پلے کارڈز اٹھا رکھے تھے جس پر بجلی بلز کے ٹیکس ختم کرنے کے نعرے درج تھے۔ صارفین کا کہنا ہے کہ اگر اضافی ٹیکس ختم نہ کیا گیا تو شٹر ڈاؤن ہڑتال کی جائے گی۔
कराची में जुबैर बेग और दीगर की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस, प्रॉपर्टी गेन टैक्स के खिलाफ एहतजाज किया गया। मज़ीद जानते हैं अरशद महमूद मुगल की इस रिपोर्ट में। रियल इस्टेट के कारोबार से मुंसलिक अफराद बजट 2022-23 गेन टैक्स के खिलाफ सरापा एहतजाज। कराची के इलाके डिफेंस में एहतजाजी मुजाहरा और प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए जुबैर बेग, इम्तियाज सिद्दीकी, बिलाल तालिब, साकिब शाह और दीगर ने हुकूमत से मुतालबा किया कि रियल इस्टेट मईशत की रीढ़ की हड्डी है, इसको दीवार से न लगाया जाए। बिलाल तालिब ने कहा कि आज हम पुरअमन एहतजाज कर रहे हैं, हमारे जायज़ मुतालबा तस्लीम न किए गए तो एहतजाज का दायरा वसी किया जाएगा। भी टैक्स दे रहे हैं, हम टूथपेस्ट पे भी टैक्स दे रहे हैं। अब ये बताएं कि ये जुल्म अगर हम पे होता रहा तो अवाम चीखेगी तो नहीं, क्या करेगी? आज हम जो रोडों पे आए हैं उसकी रीजन यही है कि हम लोगों ने टैक्सेस देते थे, हम लोगों ने इस मुल्क में इन्वेस्टमेंट लानी थी, हम लोगों ने लोगों को अट्रैक्ट करते थे। ये मार्केटिंग टूल है गवर्नमेंट का। गवर्नमेंट ने आज तक हमें रिकॉग्नाइज नहीं किया, हमारे को इंडस्ट्री का दर्जा नहीं दिया, हमारे 2% कमीशन का कोई तहफ़्फ़ुज़ नहीं है। ये फॉरेन रेमिटेंस जो दूसरे अपने ओवरसीज से या दूसरे मुल्कों से जो इन्वेस्टर्स को लाके यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर लेके आना चाह रही है, वो गवर्नमेंट ऐलान कर देती या बंद कर दिया जाए। इसकी पाकिस्तान को अब जरूरत नहीं है। ये ज्यादा बेहतर था बजाय इसके कि ये जो टैक्स के नाम पे जो इन्होंने जो 2022 और 23 के बजट के में जो साजिश की है, हम इस सब की अपनी पूरी आवाज उठाएंगे। आज के दिन में जिस तरह बैक्टीरिया के प्लेटफॉर्म से पाकिस्तान भर के जो रियल्टर्स हैं वो सरापा एहतजाज है, जो रियल्टर्स के दफ्तर नहीं बंद करेगी, ये इसके साथ जुड़ी हुई 72 इंडस्ट्रीज को भी बंद करेगी। एहतजाज पे कायना डरेंगे तो इंशाल्लाह आपको दिखेगा कि ये जो पाकिस्तान के रियल्टर्स हैं, पाकिस्तान के तमाम जो बिजनेसमैन हैं, वो अपना हक लेना जानते हैं कि वो रखे हर आदमी बेचने। मर्दान में बारिश ने इंतजामिया की कारकर्दगी का पोल खोल दिया है। मुतादिद इलाकों में बारिश का पानी जमा, शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। इलाका मकीन इंतजामिया के खिलाफ सरापा एहतजाज बन गए हैं। मुजाहिरीन का कहना है कि इंतजामिया की जानिब से कोई इकदाम नहीं किए जा रहे, मुतल्लिका आला अफसरान फौरी नोटिस लें। अटक के बसाल चौक में सीवरेज लाइन में गैस भर जाने से धमाका हुआ, जिसके नतीजे में 40 साला यासिन और 33 साला सुहेल जख्मी हुए हैं। इत्तला मिलते ही रेस्क्यू टीम मौका पर पहुंच गई। जख्मियों को मौका पर तिब्बी इमदाद दी गई है। डॉलर की ऊंची उड़ान से कारोबारी हजरात शदीद मुश्किलात का शिकार। ऑटोमोबाइल के एडिशनल नायब सदर अमजद अकील ने दरपेश मसाल से आगाह किया है। मज़ीद जानते हैं अरशद महमूद मुगल की इस रिपोर्ट में। हमें बता दें कि हम मर जाएं, अपनी फैमिली को लेके नेटी जेटी लेके छलांगे लगा लें। कमिटमेंट वाला आदमी, कारोबारी आदमी दफन हो चुका है। डॉलर की ऊंची उड़ान से कारोबारी हजरात परेशान। कहीं बिजली के बिलों में टैक्स है, कहीं FBR की लटकती तलवार। इंपोर्ट पर पाबंदी से ऑटोमोबाइल सेक्टर तबाही के दहाने पर पहुंच गया। ऑटोमोबाइल ट्रेडर्स इंपोर्टर के एडिशनल नायब सदर अमजद अकील की जानिब से हुकूमती फैसलों को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। इंपोर्ट बंद कर दिया। आप हिस्ट्री उठाएंगे, पाकिस्तान की सबसे बड़ा डॉलर देने वाले, इंपोर्ट बाहर ममालिक से डॉलर मंगाने वाले ऑटोमोटिव ट्रेड इंपोर्ट एसोसिएशन कंपनी है, जिसको इन्होंने दीवार से लगा दिया। डॉलर इस हद तक पहुंच गया कि लोग रो रहे हैं, अपने घर का सामान बेचने। कमिटमेंट जिसने किया हुआ कारोबारी, वो अपने कमिटमेंट पूरा करने के लिए डॉलर ऐसे खरीद रहे हैं जैसे घर की रोटी खाने की खरीद रहे हैं। भाई $2 दे दो, 5 दे दो, मेरे कमिटमेंट खराब हो रहे। दुनिया के अंदर डॉलर की बिनाद पे हम मिस कमिटमेंट पे चले गए सारे इंडस्ट्री कारोबारी लोग, और उसके ऊपर हमारी जो साथ का गवर्नमेंट है, उन्होंने डॉलर का जो हाल किया है कि पता नहीं है, कल 242 था, आज 252 है, कल 300 रुपये डॉलर होगा। जो उठा के जो चाह रहे हैं टैक्स लगा रहे हैं, बिजली के बिलों पर टैक्स लगा दिया, हमें पानी के ऊपर तो हम टैक्स दे रहे हैं, तो बता दो हमारे कब्रिस्तान में भी टैक्स लगा दें। भाई कोई पुरसान हाल नहीं, कोई हमारा वारिस है ही नहीं, हमारा हुक्काम आला कोई है ही नहीं, हमारा कानून हमारा है ही नहीं। LC बैंकों ने बंद कर दी पिछले 4 महीने। जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल वक्त की अहम ज़रूरत बन चुका है। तालीमी मयार को बेहतर बनाकर ही मुल्क को तरक्की की राह पर गामजन किया जा सकता है। इसी हवाले से जानते हैं वज़ीराबाद से हमारे नुमाइंदे मुश्ताक अहमद की इस रिपोर्ट में। कौम के बच्चों को जदीद दौर के तकाज़ों के मुताबिक मियारी तलीम देकर ही मुल्क का मुस्तकबिल रोशन किया जा सकता है। इन ख्यालात का इजहार मैनेजिंग डायरेक्टर स्टेप स्कूल मोहम्मद अयूब ने स्कूल की इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए किया। इस मौका पर मोहम्मद सईद, मोहम्मद लतीफ़, रेयान अयूब, सराका अयूब समेत मुअज़्ज़िज़ीन शहर की कसीर तादाद मौजूद थी। प्रिंसिपल स्कूल साइमा नाज वड़ैच ने मेहमानों को स्कूल के मुख्तलिफ हिस्सों का विजिट करवाया।
اور انہیں بریفنگ دیتے ہوئے کہا کہ سٹیپ سکول وزیرآباد کے تعلیمی میدان میں ایک اچھا اضافہ ہے جو بچوں کو آغاز سے ہی جدید ٹیکنالوجی کو استعمال کرتے ہوئے تعلیم دے گا۔ ہمارا مقصد بچوں کو دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم بھی بہترین اور صاف ستھرے ماحول میں مہیا کرنا ہے۔ بچوں کو پراپر روبوٹکس لیب، کمپیوٹر لیب اور ریسورس روم کے ذریعے اعلیٰ تعلیم دی جاتی ہے۔ بچوں کو ہینڈز آن ایکسپیرینسز کے ذریعے ان کی پرولونگ لرننگ کے لیے کام کیا جاتا ہے۔ ڈائریکٹر سکول عیسیٰ ایوب نے کہا ہے کہ ان کا ویژن ہے کہ علاقہ میں لوگوں کے بچوں کو بہترین تعلیم و تربیت دے کر مستقبل میں اچھا اور محب وطن شہری بنایا جا سکے تاکہ وہ ملک کی تعمیر و ترقی میں اہم کردار ادا کر سکیں۔ کپواڑہ میں ڈسٹرکٹ انڈسٹریل ہوم محکمہ سوشل ویلفیئر کے زیر اہتمام تقریب کمپیوٹر اور بیوٹیشن کے 3 اور 6 ماہ کے کورسز مکمل کرنے والی طالبات میں سرٹیفکیٹس تقسیم کیے گئے۔ مہمان خصوصی ممبر ایڈوائزری کمیٹی سائمہ رشید تھیں۔ مینیجر ذوالفقار علی ناز نے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ادارے میں 5 کورسز پنجاب سکلز ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے ذریعے 3 اور 6 ماہ کے کروائے جا رہے ہیں، جبکہ 10 سے زائد کورسز 3 اور 6 ماہ کے بھی کروائے جا رہے ہیں۔ تقریب میں کمپیوٹر اور بیوٹیشن کے کورسز مکمل کرنے والی 33 طالبات کو سائمہ رشید ایڈوکیٹ نے سرٹیفکیٹس دیے۔ بعد ازاں ڈسٹرکٹ انڈسٹریل ہوم میں بیوٹیشن کا کورس کرنے والی طالبات کی ٹریننگ کے لیے بیوٹی پارلر کا افتتاح ممبر ایڈوائزری کمیٹی سائمہ رشید ایڈوکیٹ اور ڈپٹی ڈائریکٹر سوشل ویلفیئر اشتیاق احمد خان نے کیا۔ پی آئی اے انتظامیہ کی جانب سے وفاقی وزیر ہوابازی خواجہ سعد رفیق کو نئے جہازوں اور پروڈکٹ کو بہتر بنانے سے متعلق بریفنگ دی گئی۔ وفاقی وزیر ہوابازی کی نئی نشستوں کی تبدیلی کا عملہ ترجیحی بنیادوں پر 4 ماہ کے اندر مکمل کرنے کی ہدایت۔ مزید جانتے ہیں کراچی سے کاشف کھوکھر کی اس رپورٹ میں۔ پی آئی اے انتظامیہ کی جانب سے وفاقی وزیر ہوابازی خواجہ سعد رفیق کو نئے جہازوں اور پروڈکٹ کو بہتر بنانے سے متعلق بریفنگ۔ پی آئی اے اپنے بیڑے میں شامل 5 ایئر بیس 320 طیاروں کی پرانی نشستوں کو نئی کشادہ اور آرام دہ نشستوں سے تبدیل کرے گا۔ نئی نشستوں کی تبدیلی کا عمل ترجیحی بنیادوں پر 4 ماہ کے اندر مکمل کرنے کی ہدایت۔ وفاقی وزیر ہوابازی خواجہ سعد رفیق کا کہنا تھا پی آئی اے کا کینیڈا آپریٹ کرنے والے خصوصی 777 لانگ رینج طیاروں کی نشستوں کو بھی تبدیل کیا جائے۔ ان طیاروں میں دوران پرواز انٹرٹینمنٹ سسٹم کی فعالی اور بہتری کی اصولی منظوری دے دی گئی۔ نشستوں اور انٹرٹینمنٹ کی ضمن میں فنڈز کا بندوبست کر دیا گیا ہے اور منصوبوں کو فاسٹ ٹریک پر مکمل کیا جائے گا۔ پی آئی اے کے بیڑے میں دوران پرواز لوکل انٹرنیٹ کنیکشن مہیا کرنے کے منصوبوں پر بھی کام شروع کرنے کی ہدایت۔ رواں سال پی آئی اے کے بیڑے میں 4 ایئر بیس 320 طیاروں کا اضافہ کیا جائے گا۔ ان میں سے 2 طیارے پی آئی اے کے بیڑے کا حصہ بن چکے ہیں، جبکہ 2 مزید طیارے اگست میں بیڑے میں شامل ہو جائیں گے۔ کاشف کھوکھر کی رپورٹ آپ نے دیکھی۔ یہاں وقت ایک شارٹ بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک۔ پنڈی گیپ کی معروف کاروباری اور سماجی شخصیت عمران خان حج اکبر کی سعادت حاصل کرنے کے بعد وطن واپس پہنچ گئے ہیں۔ اسلام آباد انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر سیار گل خان، رئیس خان، رحمان خان، فرید خان، نوری پٹھان، حکیم گل خان، اکرم خان، ضیاء الحق، نواز خان، وحید خان، منو خان سمیت کاروباری سماجی شخصیات اور دوست احباب نے ان کا والہانہ استقبال کیا اور حج اکبر کی سعادت حاصل کرنے پر مبارکباد دی۔ پشاور میں ایس ایس پی آپریشنز کاشف آفتاب عباسی کا امام بارگاہوں کا دورہ، ایس پی سٹی اور ایس پی کینٹ بھی ہمراہ تھے۔ ایس ایس پی آپریشنز نے تمام امام بارگاہوں اور جلوس کے روٹس کا تفصیلی جائزہ لیا اور سیکیورٹی سے متعلق ضروری ہدایات دیں۔ تھانہ خان رازق شہید میں قائم کمان پوسٹ کے سیکیورٹی کیمرے بھی چیک کیے۔ محرم الحرام کے دوران امن و امان اور مجالس کی سیکیورٹی کے لیے جامع سیکیورٹی پلان تشکیل دیا گیا۔ جمبر پریس کلب میں ریسکیو ٹیم نے صحافیوں کو فرسٹ ایڈ ٹریننگ دی۔ ریسکیو اینڈ سیفٹی آفیسر رابعہ خلیل کا کہنا تھا کہ ٹریننگ کا مقصد کسی بھی ایمرجنسی کی صورت میں ریسکیو ٹیم کے پہنچنے سے قبل زخمی کی حالت کو بہتر بنانا ہے۔ مزید جانتے ہیں طیب جویہ کی اس رپورٹ میں۔ جس نے ایک شخص کی جان بچائی گویا اس نے پوری انسانیت کی جان بچا لی۔ ڈی جی ریسکیو 1122 ڈاکٹر رضوان نصیر کی خصوصی ہدایت پر
डिस्ट्रिक्ट एमरजेंसी ऑफिसर इंजीनियर सुल्तान महमूद की ज़ेर निगरानी और रेस्क्यू एंड सेफ्टी ऑफिसर तहसील पत्तो की मैडम राबिया खलील की ज़ेर क़यादत, स्टेशन कोआर्डिनेटर तहसील पत्तो की मोहम्मद एजाज, फैज़ रसूल, मीडिया कोआर्डिनेटर जाहिद चौधरी और गुलाम मुस्तफ़ा पर मुश्तमिल रेस्क्यू 1122 की मेडिकल टीम की जानिब से फर्स्ट एड के हवाले से प्रेस क्लब जंबर में सहाफ़ियों को फर्स्ट एड की ट्रेनिंग दी गई। इस मौका पर रेस्क्यू एंड सेफ्टी ऑफिसर तहसील पत्तो की मैडम राबिया खलील का कहना था कि ट्रेनिंग का मकसद हर किस्म की एमरजेंसी की सूरत में रेस्क्यू 1122 के एहलकारों के पहुंचने से पहले मरीज या जख्मी को फौरी फर्स्ट एड फराहम करना है ताकि इंसानी जानों का ज़िया कम से कम हो। रेस्क्यू 11 बाई आवाम को उनके घर की दहलीज पर बैनुल अक़वामी मेयार की तमाम तर सहूलियात बिल्कुल मुफ्त फराहम करता है ताकि किसी भी एमरजेंसी की सूरत में शहरी टोल फ्री नंबर 11 बाई पर मुफ्त कॉल करें और रेस्क्यू 1122 की खिदमत हासिल करें। रेस्क्यू 1122 के नौजवान हर किस्म की एमरजेंसी से निमटने और इमदादी कामों में हिस्सा लेने की बैनुल अक़वामी तरबियत हासिल की है और अफसरान बाला की हिदायत की रोशनी में 24 घंटे अवामुल नास की खिदमत के लिए कोशां हैं। इस मौका पर सदर प्रेस क्लब जंबर रफीक जोया, जनरल सेक्रेटरी हकीम प्रोफेसर मोहम्मद अबू बकर व दीगर मेंबरान की जानिब से रेस्क्यू 1122 की पेशा वाराना सलाहियतों को खूब सराहा। सियालकोट में डिफेंस रोड पर नादरा ऑफिस का इफ्तिताह कर दिया गया। इफ्तिताह वफाकी वजीर ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने किया। मज़ीद जानते हैं मोहम्मद मुश्ताक भट्टी की इस रिपोर्ट में। सियालकोट वफाकी वजीर दफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने सियालकोट में अवामी सहूलत के लिए नादरा एग्जेक्टिव सेंटर का इफ्तिताह किया। डिफेंस रोड पर कायम करदा सेंटर बेवक्त वक्त में हज़ारों शहरियों को सहूलियात देने की काबिलियत रखता है। ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने नादरा सेंटर में मौजूद तमाम सहूलियात का जायज़ा लिया और कलील मुद्दत में मनसूबा की तकमील पर सबको सराहा। इफ्तिताही तकरीब में नादरा हकाम भी मौके पर मौजूद थे जिन्होंने वफाकी वज़ीर ख्वाजा मोहम्मद आसिफ का इस्तकबाल किया। भलवाल में अहले सुन्नत और जमात के ज़ेर तमाम यौम शहादत हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु की हवाले से रैली निकाली गई जिसकी क़यादत हाफिज़ राना अब्दुल जब्बार सदर अहले सुन्नत वल जमात तहसील भलवाल ने की। मौलाना मोहम्मद उस्मान, मुफ्ती मोहम्मद खान और इलामा अब्दुर्रहमान शेर ने खुसूसी शिरकत की। रैली पुल नहर भेरा भलवाल चौक से शुरू होकर रेलवे चौक पहुंचकर इख्तिताम पजीर हुई। आपको बता रहे हैं कि भलवाल में अहले सुन्नत वल जमात के ज़ेर एहतमाम यौम शहादत हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के हवाले से रैली निकाली गई जिसकी क़यादत हाफिज़ राना अब्दुल जब्बार सदर अहले सुन्नत वल जमात तहसील भलवाल ने की। मौलाना मोहम्मद उस्मान, मुफ्ती मोहम्मद खान और इलामा अब्दुर्रहमान शेर ने खुसूसी शिरकत की। रैली पुल नहर भेरा भलवाल चौक से शुरू होकर रेलवे चौक पहुंचकर इख्तिताम पजीर हुई। और यहाँ आपको बताएंगे गुजरांवाला में कार शोरूम के मालिक नवीस का दिन दिहाड़े अगवा, पुलिस ने मुल्ज़मान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके तहकीकात का आगाज कर दिया है। आपको बता रहे हैं गुजरांवाला में कार शोरूम के मालिक नवीस का दिन दिहाड़े अगवा, पुलिस ने मुल्ज़मान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके तहकीकात का आगाज कर दिया है। तफसीलात जान लेते हैं टेलीफोन लाइन पर मौजूद नुमाइंदा कोहिनूर न्यूज़ और ब्यूरो चीफ गुजरांवाला मलिक तौसीफ अहमद से। मलिक तौसीफ, मुल्ज़मान को गिरफ्तार नहीं किया गया अभी तक? जी ये ऐसे है, कार शोरूम का मालिक दिन दिहाड़े अगवा कर लिया गया है। 5 रोज कबल ताजर के अगवा की सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ गई है। फुटेज में मुल्ज़मान को सफेद रंग की कारों में ताजर नवीस को अगवा करते देखा जा सकता है। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज देखकर मुकदमा दर्ज कर लिया है। एफआईआर के मुताबिक 3 गाड़ियों में सवार मुल्ज़मान फैसल, साकिब और हमजा ने अपने साथियों समेत नवीस को अगवा किया और नवीस को शदीद तशद्दुद का निशाना बनाया। नवीस के पास मौजूद 13 लाख से जायद की रकम जो है और दीगर कागजात छीन लिए, जबकि मुल्ज़मान ने गाड़ी छीन कर नवीस पर तशद्दुद किया जिसका मेडिकल भी करवाया गया है। पुलिस राय का कहना है कि मदई का भाई थाना 10 का सिटी में 499F के मुकदमा में गिरफ्तार है जिसे जख्मी हालत में पुलिस थाना सिटी के हवाले किया गया था। पुलिस का कहना है कि वाकया की मुख्तलिफ जावियों से तहकीकात शुरू कर दी गई है। अभी तक कोई भी गिरफ्तारी अमल में ना लाई गई है। जी तो सिर्फ ये भी कहेगा कि कोई दरीना दुश्मनी थी इस सारे मामले में, आखिरी सारा मामला क्यों पेश है? ये ऐसे है कि 499F का मुकदमा था मुल्ज़म नवीस पर, जिसके सिलसिले में मुल्ज़मान ने खुद पुलिस बनकर प्राइवेट सफेद गाड़ी में फुटेज में देखा जा सकता है मुल्ज़म नवीस को खुद गिरफ्तार करके अगवा करके जो है वो लेके गए हैं, उस पर तशद्दुद किया। एक नजी मिल है वहां पर उस पर तशद्दुद करते रहे और जब वो जख्मी
नहीं हो गया तो उसे पुलिस के हवाले कर दिया गया। जी तौसीफ मलिक अपडेट करे थे, आपका बहुत शुक्रिया। फैसलाबाद में मरकजी इमाम बारगाह के तरफ बारिश का पानी जमा है। धोबीघाट ग्राउंड से भी बारिश का पानी ना निकाला जा सका। इसी हवाले से मजीद जानते हैं वहां मौजूद हमारे नुमाइंदे मुरीद हुसैन से। मुरीद हुसैन, धोबीघाट ग्राउंड के इस वक्त क्या सूरत हाल देख रहे हैं? जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद अजाखाना शब्बीर जो कि मरकजी इमाम बारगाह फैसलाबाद की उससे मुल्हिका ग्राउंड है, धोबीघाट ग्राउंड, जहाँ पर जो अज़ादारान हुसैन है वो यकम मुहर्रम उल हराम से लेकर अशूरा तक यहाँ पर खैमे लगाते हैं, लेकिन इस दफ़ा बारिश के पानी की वजह से वो अपने खैमे लगाने से कासर है। हमारे साथ कुछ मौजूद भी हैं यहाँ पर अज़ादार, हम उनसे इस हवाले से मज़ीद जानते हैं। जी बताइएगा, धोबीघाट ग्राउंड कदीमी यहाँ पर जो है वो खैमे लगाए जाते हैं, इस दफ़ा आपको यहाँ पर पानी के जो मसाइल हैं वो पेश आ रहे हैं, क्या कहेंगे? जी मेरा नाम अमानत अली कुरैशी है। हम मौला के जो अयाम है इस धोबीघाट में तकरीबन हमारे पैदा होने से पहले से यहाँ से अज़ादारान इमाम हुसैन खैमे वगैरह लगाते हैं और न्याज़ें तकसीम होती हैं, और बल्कि सारा सिलसिला जो है वो धोबीघाट में है। लेकिन आज 6-7 दिन हो गए हैं, हम मतवातर कमिश्नर साहब, डीसी साहब और दीगर अफसरान, एमडी वासा, सबके पास गए हैं। किसी ने भी ये इधर आके नहीं पूछा कि मुरीद हुसैन अपडेट करे थे, आपका बहुत शुक्रिया। आगे बढ़े और आपको बताएं, चिन्योट पुलिस की जानिब से मुहर्रम उल हराम के दौरान अमन व अमान बरकरार रखने के लिए सिक्योरिटी इंतजाम मुकम्मल कर लिए गए हैं। मुहर्रम उल हराम में जिला भर में 1300 से ज़ायद पुलिस एहलकार फ़राइज़ सर अंजाम देंगे। मज़ीद जानते हैं डॉक्टर शेख समीर की इस रिपोर्ट में। चिन्योट पुलिस की जानिब से मुहर्रम उल हराम के दौरान अमन व अमान बरकरार रखने के लिए सिक्योरिटी इंतजाम मुकम्मल कर लिए गए। मुहर्रम उल हराम में ज़िला भर में कुल 258 जुलूस और 685 मजालिस का इनकाद होगा, जिनमें 32 जुलूस और 70 मजालिस कैटेगरी ए की होंगी। मजालिस और जुलूसों पर 6 DSPs, 12 इंस्पेक्टर समेत 1300 से ज़ायद पुलिस एहलकार अपने फ़राइज़ सर अंजाम देंगे, जबकि तमाम जुलूसों और मजालिस की CCTV और ड्रोन कैमरों की मदद से कंट्रोल रूम में मॉनिटरिंग भी की जाएगी। इसी हवाला से तर्जुमान पुलिस मोहसिन हसन खान का गोल नूर न्यूज़ की टीम से गुफ्तगू करते हुए कहना था। DPO साहब चिन्योट ने सिक्योरिटी के तमाम इंतजामात को खुद देखते हुए मीटिंग्स वगैरह मुकम्मल की हैं, और चिन्योट में तकरीबन 1300 से ज़ायद पुलिस अफसरान और जवान जो हैं वो ड्यूटी अंजाम देंगे। सर्विलेंस का निज़ाम, CCTV कैमरे, जलूस के दाखिली खारजी रास्ते, 4 लेयर सिक्योरिटी और दीगर इंतजाम को कंप्लीट किया गया है, और इंशाल्लाह शहर भर में अमन व अमान की सूरत हाल को इंश्योर किया जाए। जबकि DPO चिन्योट असद रहमान का कहना था कि तमाम वसाइल बरूए कार लाते हुए फ़िरका वाराना महंगी और अमन व अमान की सूरत हाल को बहाल रखा जाएगा। शेख समीर की रिपोर्ट आपने देखी। यहाँ वक्त एक शॉर्ट ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। लाहौर के इलाके बादामी बाग में सेक्रेटरी पंजाब बार काउंसिल के कत्ल का मामला, पुलिस ने मुलजमान की गिरफ्तारी के लिए टीमें तश्कील दे रखी हैं, जबकि DSP आतिफ महराज कहते हैं मुलजमान की गिरफ्तारी के हवाले से टेलीविजन पर चलने वाली खबरें बेबुनियाद हैं, जबकि मुलजमान के खिलाफ अहम पेशरफ्त के साथ साथ अहम शवाहिद भी इकट्ठे किए जा रहे हैं। तफसीलात जान लेते हैं टेलीफोन लाइन पर मौजूद नुमाइंदा कोहिनूर न्यूज़ चीफ क्राइम रिपोर्टर वसीम साबर हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं, उनसे अपडेट्स ले लेते हैं। वसीम, अपडेट कीजिएगा। देखेंगे, बादामी बाग के इलाका में सेक्रेटरी पंजाब बार काउंसिल के कत्ल का जो मामला हुआ था, उसमें ताहाल जो है वो अभी तक पुलिस ने किसी मुलजम को गिरफ्तार तो नहीं किया, लेकिन शक की बिना पर जो है वो कुछ लोगों को बुलाया गया था और उनकी तफ्तीश की गई, लेकिन तफ्तीश के दौरान अभी तक जो है वो कत्ल साबित नहीं हुआ। और मेरी जब बात हुई DSP जो है वो बादामी बाग से, उनका कहना था कि बहुत सारे शवाहिद इकट्ठे कर लिए हैं, CCTV फुटेज भी जो है वो मंगवा ली गई है, और इसके अलावा जो है वो मोबाइल फोन का डाटा भी हासिल कर लिया गया है। उम्मीद है कि जल्द जो है वो मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। जिस तरह से आज टेलीविजन पर नशर होने वाली खबरें जिनमें बड़ा वाज़े कहा गया था कि अहम पेशरफ्त हुई है, उसके दामाद ने जो है उसे कत्ल करवाया है, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। जब मेरी DSP से बात हुई तो उनका कहना था कि ऐसी खबरों में कोई सदाकत नहीं,
ताहाल अभी तक जो है वो किसी को गिरफ्तार नहीं किया। उम्मीद है कि जल्द जो है वो मुल्जमान असल जो थे वो सामने आएंगे, उनको गिरफ्तार किया जाएगा। और इसके अलावा मैं बताता चलूं कि सेक्रेटरी पंजाब बार काउंसिल जब अपने जो है वो दफ्तर से घर की जानिब जा रहे थे, उनको नामालूम अफराद ने गोलियां मारकर जो है वो गाड़ी में कत्ल कर दिया था, लेकिन अभी तक ताहाल किसी मुलजम को गिरफ्तार नहीं किया। पुलिस जो है वो बेहद कोशिश कर रही है, तमाम जो है वो शवाहिद इकट्ठे कर लिए गए हैं। बहुत मेहनत के बाद जो है वो सीसीटीवी फुटेज और मोबाइल फोन का डाटा भी हासिल किया गया है, लेकिन मुखबिर खास जो है वो उनको भी पीछे लगाया गया है ताकि असल मुल्जमान जो है वो गिरफ्तार किए जाएं। डीएसपी साहब का कहना था कि जब असल मुल्जमान गिरफ्तार किए जाएंगे तो उस वक्त जो है वो मीडिया के सामने भी लाए जाएंगे और सीनियर अफसरान को भी इस बात से आगाह किया जाएगा। लेकिन आज जो टेलीविजन पर चलने वाली जो खबरें थी वो बिल्कुल झूठी और बेबुनियाद थी। ताहाल अभी तक किसी मुल्जम को गिरफ्तार नहीं किया गया। बाकायदा तौर पर जो है वो मुल्जमान के हवाले से अगर बात की जाए तो उनके मोबाइल फोन के डाटे और दीगर जो है वो शवाहिद पुलिस की जानिब से इकट्ठे किए गए हैं और जल्द मुल्जमान को जो है वो गिरफ्तार कर लिया जाएगा। जी, असद मुल्जमान को गिरफ्तार करके मीडिया के सामने लाया जाएगा। वसीम साहब अपडेट करे थे, आपका बहुत शुक्रिया। पंजाब यूनिवर्सिटी इदारा तालीफ व तर्जुमा और कोलंबिया यूनिवर्सिटी के दरमियान बाहमी तावन के मुआहदे पर इत्तफाक। कोलंबिया यूनिवर्सिटी न्यूयॉर्क के उस्ताद और नामवर मौरिख डॉक्टर मनान अहमद आसिफ ने पंजाब यूनिवर्सिटी के इदारा तालीफ व तर्जुमा का दौरा किया। डॉक्टर मनान कोलंबिया ग्रुप फॉर एक्सपेरिमेंटल मेथड्स इन ह्यूमनिस्टिक रिसर्च के मुस्सिसीन में शामिल हैं। इनकी कुतब साउथ एशिया में मुसलमानों के हवाले से हवाला जाती माखज़ की हैसियत रखती हैं। उन्होंने इदारा तालीफ व तर्जुमा पंजाब यूनिवर्सिटी के दौरे के दौरान इदारे के डायरेक्टर डॉक्टर जाहिद मुनीर आमिर से मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख्याल किया है, जिनमें इदारे के कोलंबिया यूनिवर्सिटी के साथ MOU के हवाले से बाहमी रजामंदी सहर फहरिस्त है। गवर्नर हाउस लाहौर में चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की 100 साला गोल्ड मेडल्स अवार्ड की तकरीब में गवर्नर पंजाब मोहम्मद बलीगुर रहमान ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की है। तफसीलात जान लेते हैं नुमाइंदा पोहे न्यूज़ ब्यूरो चीफ शेख जाफर से। शेख जाफर, अपडेट कीजिएगा। डिप्टी ब्यूरो चीफ शेख जाफर हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं, उनसे अपडेट ले लेते हैं। शेख जाफर, गवर्नर हाउस में जो तकरीब हुई है इस हवाले से अपडेट कीजिएगा। जी, लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने अपनी 100 साला गोल्ड मेडल अवार्ड की तकरीब गवर्नर हाउस लाहौर में मुनक्कद की, जिसमें गवर्नर पंजाब मोहम्मद बलीगुर रहमान ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। तकरीब से खिताब करते हुए गवर्नर पंजाब मोहम्मद बलीगुर रहमान का कहना था कि कारोबारी बरादरी मुल्क की मईशत में न सिर्फ अहम किरदार अदा कर रही है बल्कि फलाई कामों में भी खिदमत पेश कर रही है, जो कि काबिल जिक्र है। उन्होंने कहा कि सहादी हुकूमत इकदार की किसी ख्वाहिश पर कायम नहीं हुई बल्कि पाकिस्तान की मईशत को दिवालिया बनाने से बचाने के लिए वजूद में आई और हुकूमत महज एक कौमी फरीजा समझते हुए संभाली। पाकिस्तान की माशी खुद इंसारी हमारी असल मंजिल है। हमें मईशत के बारे में विकास पर कौमी इत्तेफाक राय पैदा करना होगा ताकि हुकूमत बदलने से माशी पॉलिसियां ना बदलें और ना ही कोई अपने सियासी मुफाद की खातर आइंदा अवाम के माशी मुस्तकबिल से खेल सके। गवर्नर पंजाब मोहम्मद बलीगुर रहमान ने इस मौके पर कारोबारी बरादरी का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि जिस गैर मामूली मुश्किल माशी हालात में किए गए हुकूमत के गैर मामूली और मुश्किल फैसलों की तारीद और हमायत की गई वो काबिल फख्र है। गवर्नर पंजाब का मजीद कहना था कि मौजूदा हुकूमत ने जिम्मेदारी संभालते ही कारोबारी बरादरी को दरपेश मसाइल के फौरी हल के लिए इकदाम उठाए और आते ही DLTL की मद में 42 अरब रुपए एक्सपोर्टर्स को अदा किए, जो कि गुज़श्ता 4 साल से अदा नहीं हुए थे। हुकूमत ने सोनल पैदल पर हर तरह के टैक्स को भी खत्म किया ताकि सोनल पैदल इम्पोर्ट हो सके, जिससे ताजर बरादरी अवाम को सहूलत मिल सके। हुकूमत ने मुश्किल तरीन माशी हालात के बावजूद अवाम के लिए आटा, चीनी, घी समेत दीगर शहर जरूरियात की कीमतों में कमी का पैकेज दिया। जी, डिप्टी ब्यूरो चीफ शेख जाफर अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। डायरेक्टर जनरल औकाफ पंजाब डॉक्टर ताहिर रज़ा बुखारी का अहम इक़दाम मज़ार बीबी पाक दामन को मुहर्रम उल हराम के हवाले से आम ज़ायरीन के लिए खोल दिया गया है। मज़ीद जानते हैं सलमान शाह की इस रिपोर्ट में। डायरेक्टर जनरल औकाफ पंजाब डॉक्टर ताहिर रज़ा बुखारी ने शिया व सुन्नी अमन कमेटी के मेंबरान के हमरा मज़ार हज़रत बीबी पाक दामना सलामुल्लाह अलैह को आशूरा मुहर्रम के दौरान आम ज़ायरीन के लिए खोलते हुए कहा, मुहर्रम उल हराम में फ़िरका वाराना हम आहंगी और बैनुल मसालिक रवादारी को यकीनी बनाया जाएगा। करबला के रेगजार पर अहले बैत तहार की लाजवाल कुर्बानियाँ तारीख़ इस्लाम की ऐसा ताबनाक बाब है जिससे उम्मत क़यामत तक रहनुमाई हासिल करती रहेगी।
दीनी तबकात दिफाए वतन के तकाज़ों से आगाह और इस्तेहकाम पाकिस्तान के लिए हमेशा की तरह मुस्तैद और पुरअज़म है। इस मौका पर शिया सुन्नी अमन कमेटी के मेंबरान मुफ्ती कैसर नईमी और आगा शाह हुसैन कजलबाश ने आशूरा मुहर्रम के दौरान मज़ार बीबिया पाक दामना सलामुल्लाह अलैह को आम ज़ायरीन के लिए खोलने के हुकूमती फैसले की तहसीन करते हुए कहा कि ये मज़ार अमन, मोहब्बत, रवादारी और भाईचारे का मरकज़ है। बिलखुसूस आशूरा मुहर्रम के दौरान यहाँ इन रवायात को मुस्तहकम और यकीनी बनाया जाएगा। जोनल एडमिनिस्ट्रेटर औकाफ लाहौर जोन गुलाम अब्बास और मैनेजर औकाफ शेख मोहम्मद जमील ने ज़ायरीन के लिए फराहम करदा सहूलियात की तफसील बताते हुए कहा कि आशूरा के दौरान सिक्योरिटी, सफाई, लंगर और तबी सहूलियात की बाहम रसानी का एहतमाम होगा। इस मौका पर ज़ायरीन की कसीर तादाद भी मौजूद थी। कैमरामैन आशिर के साथ सलमान। हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का यौम शहादत आज अक़ीदत व एहतराम से मनाया जा रहा है। इसी हवाले से मुल्क भर में सेमिनार और दीगर तकरीबात का इनेकाद किया जा रहा है, जिनमें मुकर्रिरीन ने सैयदना हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के फ़ज़ाइल और मनाक़िब, सीरत व किरदार और बेमिसाल फतूहात और कारनामों पर रोशनी डाली। मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतहाई करीबी रफ़ीक अमीरुल मोमिनीन सैयदना फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वाक़या फ़ील्ड के 13 साल बाद मक्का में पैदा हुए। नबूवत के 6 साल 33 बरस की उम्र में इस्लाम कबूल किया। आरिफ आला में पंजाब फूड अथॉरिटी टीम की कार्रवाई, मिलावट करके सुर्ख और मिर्च पाउडर बनाने वाला यूनियन पकड़ा गया है। मज़ीद जानते हैं रजा सैदी के इस रिपोर्ट में। फूड अथॉरिटी की टीम ने पाकपतन रोड पर अल्लाह वाली मस्जिद के करीब वाक़या एक चक्की पर छापा मारा, जहां पर मसनूई अशिया मिक्स करके सुर्ख मिर्चें पीसी जा रही थी, जो इलाका भर की दुकानों पर सेल की जानी थी। पंजाब फूड अथॉरिटी की टीम ने मौका से मिलावटी सामान मसलन 3 किलो ममनुआ रंग, 30 किलो फक, 1270 किलो तैयार शुदा मिलावटी और गैर मियारी मिर्च, 20 किलो मिलावटी हल्दी, 10 किलो जायद और मियाद और गैर मियारी पैक शुदा मिर्च बरामद करके अपनी तहवील में लेकर यूनिट मालिक के खिलाफ थाना सिटी आरिवाला में मुकदमा दर्ज करवा दिया, जबकि यूनिट की मशीनरी को भी अपनी तहवील में लेकर दफ्तर में पहुंचा दिया। नारोवाल के नवाही गांव बसर उजाला का रहायशी जाहिद नामी नौजवान नारोवाल जेल में जाम भाग। जाहिद नामी मुलजिम बीवी से अलहदगी पर नानो नकफा की अदम अदागी पर कैद काट रहा था। पुलिस ने मतोफी को चंद हफ्ते कबल गिरफ्तार करके जेल मुंतकिल किया था। लाश को डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। मुरीदके में बिलाल पाक जीटी रोड पर नामालूम अफराद की फायरिंग से 3 अफराद जख्मी हो गए। जख्मियों को THQ अस्पताल मुंतकिल किया गया, जिनमें से 2 अफराद को तशवीशनाक हालत में लाहौर अस्पताल मुंतकिल किया गया। जख्मियों में बाबा हसन और दीगर शामिल हैं। हाफसाबाद में पंजाब फूड अथॉरिटी का जालसाज माफिया के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी का अमली नफाज। ग़िज़ाई अशिया की तैयारी में ज़ादुल मियाद अज्जा का इस्तेमाल करने पर कार्रवाई करते हुए फास्ट फूड पॉइंट्स को जुर्माना किया गया। सफाई के इंतहाई नाकिस इंतजामात और मकड़ी के जालों की बहतात पाई गई। सेक्शन 13 और 15 की खिलाफ वर्जी करने पर रसूलपुर तारट में वाक़े बारबेक्यू शॉप पर कार्रवाई की गई। दौरान कार्रवाई हिफ्ज़ान सेहत के उसूलों की खिलाफ वर्जी पाई गई है। मुस्तफ़ाबाद में पुलिस की कार्रवाई। पुलिस ने अजमल उर्फ लारा डकैत गैंग के 3 अरकान को गिरफ्तार कर लिया, जबकि सरगना अजमल उर्फ लारा फरार हो गया है। मुलजमान ने डकैती और आसानी की मुतादिद वारदातों का इंकशाफ किया है। मुलजमान के कब्जे से 1,03,000 रुपये नकदी, रिक्शा, मोटरसाइकिल और असलहा बरामद कर लिया गया है। गिरफ्तार मुलजमान में अबू बकर जट, साजिद उर्फ नुमान और अदील अशरफ खोखर शामिल हैं। आपको बता रहे हैं कि मुस्तफ़ाबाद में पुलिस की कार्रवाई सामने आई है। पुलिस ने अजमल उर्फ लारा डकैत गैंग के 3 अरकान को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि सरगना अजमल उर्फ लारा फरार हो गया है। मुलजमान ने डकैती और आसानी की मुतादिद वारदातों का इंकशाफ किया है। मुलजमान के कब्जे से 1,03,000 रुपये नकदी, रिक्शा, मोटरसाइकिल और असलहा बरामद कर लिया गया है। गिरफ्तार मुलजमान में अबू बकर जट, साजिद उर्फ नुमान और अदील अशरफ खोखर शामिल हैं। उमरकोट की तहसील कंट्री में बिजली के बिल्स में इजाफी टैक्स के खिलाफ अवाम का एहतजाज।
शहरियों और ताजर बरादरी ने एहतजाजी रैली निकालकर प्रेस क्लब कंट्री के सामने मुजाहरा किया। मुजाहरीन का कहना था कि बिजली के बिल्स में 2000 से 20,000 तक जनरल सेल्स टैक्स लगाकर ताजरों के साथ जुल्म किया जा रहा है। टैक्स ने ताजरों की कमर तोड़कर रख दी है। ऐसे जालिमाना टैक्स को हम नहीं मानते। बिल जला देंगे मगर अदा नहीं करेंगे। जबकि घर के बिल्स में फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में हज़ारों रुपए का टैक्स लगा दिया गया है। इस महंगाई के दौर में पेट पालना मुश्किल है, जहां इतने भारी बिल्स अदा करना हमारे बस में नहीं है। इनका मज़ीद कहना था कि अगर हुकूमत समझ रही है ताजरों से ये बिल्स वसूल कर लेंगे तो ये इनकी भूल है। बहावलपुर में भी अंजुमन ताजरान की जानिब से बिजली के बिल्स में इजाफी टैक्स के खिलाफ एहतजाज किया गया। लगने पर हुकूमत को आड़े हाथों लिया गया। प्रेस क्लब बहावलपुर के सामने शदीद एहतजाज मुजाहरा भी किया गया और हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की गई। हुकूमत से फिलफौर बिलों पर लगाए गए इजाफी टैक्स खत्म करने का मुतालबा किया गया है। मज़ीद जानते हैं बहावलपुर से उसामा मुगल की इस रिपोर्ट में। अंजुमन ताजरान चेयरमैन सैयद इशरार शाह, वाइस चेयरमैन सैयद शरीफ शाह, सदर असलम खान की क़यादत में बिजली के बिलों में इजाफी टैक्स के खिलाफ रैली निकाली गई। रैली में ताजरान के साथ साथ दुकानदारों ने कसीर तादाद में शिरकत की और वक्त हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की। अंजुमन ताजरान का कहना था कि मैं हुकूमत वक्त से मुतालबा करता हूँ कि सारे हमारे अंजुमन ताजरान हम साथ हैं। 7 यूनिट का बिल 7,000 रुपया है। होश के नाखून लें और ये जो 3,000, 6,000 और 20,000 तक जो टैक्स लगाया है वो फिलफौर वापसी लें। जैसा कि आज हम तमाम ताजिर सरापा एहतजाज हैं, ये बिजली के बिलों के अंदर सेल टैक्स लगाया गया है। हम बिजली के बिल भरना चाहते हैं मगर सेल टैक्स हम कभी नहीं भरेंगे। वो सेल टैक्स तमाम जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां हैं वो भी दे रही हैं और जो डिस्ट्रीब्यूशन वाले हैं वो भी दे रहे हैं। हमारा हक नहीं बनता कि हम जनाबे वाला इनको टैक्स दें और हम इस हुकूमत से इल्तिजा करते हैं कि ये जनाबे वाला इसके ऊपर मेहरबानी करे। ये तो ताजिर दोस्त हुकूमत थी और इसने वादे किए थे कि हम आपका साथ देंगे और आपको रिलीफ देंगे, मगर इस हुकूमत ने वो काम किया है जो कभी किसी ने नहीं किया। और मैं ये कहूँगा इस हुकूमत के दिन पूरे गिने जा चुके हैं। अगर इन्होंने ताजरों का साथ नहीं दिया या अगर हमें इन्होंने रिलीफ ना दिया तो हम फिर नारा लगाएंगे कि गिरती हुई दीवार को एक टक्कर और दो, कि आप ताजरों के साथ टक्कर नहीं ले सकते। ये ताजिर आपकी टक्कर। बहावलपुर में भी अंजुमन ताजरान की जानिब से बिजली के बिल्स में इजाफी टैक्स के खिलाफ एहतजाज किया गया। मज़ीद जानते हैं बहावलपुर से उसामा मुगल की इस रिपोर्ट में। यहाँ वक्त एक शॉर्ट ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। का केमिकल फॉर्मूला क्या है? कुकड़ू पता था मुझे, यहाँ से बजेगा कुकड़ू। अली भाई आराम से रिलैक्स कर रहे हैं आप, है कंपटीशन आ गया है। सो नाउ यू नो व्हाट टू डू। हम दोनों काउंटिंग करेंगे और अली भाई सिप करेंगे एस्प्रेसो शॉट के ऊपर, क्योंकि आप जवाब नहीं दे पाए। ऑन काउंट ऑफ 3, 2, 1 वेलकम बैक। कोट गुलाम मोहम्मद में मनशियात का धंधा अरूज पर। अहले इलाका का कहना है कि कोट गुलाम मोहम्मद शहर के गली मोहल्ले भी इन मनशियात फरोशों से महफूज नहीं है। हमारी नई नस्ल को चंद पैसों की खातिर तबाह किया जा रहा है। पुलिस फौरी नोटिस लेते हुए मनशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाए। आपको बता रहे हैं कि कोट गुलाम मोहम्मद में मनशियात का धंधा अरूज पर पहुंच चुका है। अहले इलाका का कहना है कि कोट गुलाम मोहम्मद शहर के गली मोहल्ले भी इन मनशियात फरोशों से महफूज नहीं हैं। हमारी नई नस्ल को चंद पैसों की खातिर तबाह किया जा रहा है। पुलिस फौरी नोटिस लेते हुए मनशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाए।
हुकूमत की तब्दीली के बाद पंजाब पुलिस में उखाड़ पछाड़ का सिलसिला तेजी से जारी है। पहले रीजनल पुलिस ऑफिसर फिर CCPO लाहौर के बाद पंजाब हुकूमत ने DIGs के तकर्रुर तबादले के अहकाम जारी कर दिए हैं। DIG ऑपरेशंस लाहौर कैप्टन रिटायर्ड सुहेल चौधरी को तब्दील करके इनकी जगह अफसाल कौसर नए DIG ऑपरेशंस तैनात हो गए हैं। तफसीलात जान लेते हैं टेलीफोन लाइन पर मौजूद चीफ क्राइम रिपोर्टर वसीम साबर से। वसीम साबर, ये जो उखाड़ पछाड़ हुआ है इस हवाले से अपडेट कीजिएगा। देखें, वजीर आला पंजाब चौधरी परवेज लाई की जो है वो तब्दीली के बाद पंजाब हुकूमत की जानिब से भी जो है वो 7 DIGs के तकर्रुर तबादले के अहकाम जारी कर दिए गए हैं। तब्दील होने वालों में RPO सरगोदा इमरान महबूब को AIG CTD लाहौर तैनात किया गया है और फ्लैट लेफ्टिनेंट जो है वो कैप्टन रिटायर्ड वसीम अहमद को जो है वो IG जो है वो CTD के ओहदे से हटा दिया गया है। इसी तरह से मोहम्मद अजहर अकरम को RPO सरगोदा तैनात किया गया है। फैसल अली राजा को DIG इंटेलिजेंस स्पेशल ब्रांच तैनात करने के अहकाम जारी किए गए हैं। और मैं बताता चलूं कि IG दफ्तर की जानिब से मरासले के मुताबिक अफजल महमूद भट्ट को DIG BBIP सिक्योरिटी स्पेशल ब्रांच तैनात किया गया है। जबकि DIG लाहौर की अगर बात की जाए तो कैप्टन रिटायर्ड सुहेल चौधरी को भी तब्दील कर दिया गया है। उनकी जगह अफजाल अहमद कौसर को जो है वो DIG ऑपरेशन तैनात कर दिया गया है। कैप्टन रिटायर्ड सुहेल चौधरी को जो है वो DIG CTD पंजाब तैनात करने के अहकाम जारी कर दिए गए हैं। IG पंजाब की जानिब से तमाम अफसरान को फौरी अपनी जाए तैनाती पर रिपोर्ट करने का भी हुक्म दिया गया है। जी वसीम साबर अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। डिप्टी कमिश्नर एबटाबाद अवामी मसाइल के हल के लिए कोशा हैं। डिप्टी कमिश्नर की जानिब से ऑनलाइन कचहरी का इनेकाद किया गया। मज़ीद जानते हैं उबैदुर्रहमान सुलेमानी की इस रिपोर्ट में। एबटाबाद डिप्टी कमिश्नर की ऑनलाइन फेसबुक कचहरी का इनेकाद किया गया। ऑनलाइन शिकायत में सवालात किए गए कि जंगलात में दरख्त उगाए जाएँ। अस्पताल से इमरजेंसी मरीजों के लिए पार्किंग फीस ख़त्म करने के हवाले से भी सवाल किया गया। जबकि कि हाल में पहाड़ और दरख्त की कटाई के जवाब में DC एबटाबाद का कहना था कि मानसून, अब सुलेमानी साहब बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, इंशाल्लाह दरख्त लगाएंगे। तो गवर्नमेंट अस्पताल से पार्किंग फीस, सुलेमानी साहब एक चीज़ आपसे बात करना चाहूँगा, जो आप कह रहे हैं पार्किंग फ़ीस ख़त्म करें। सो अगर मुझसे आप पूछते हैं, ये पार्किंग फ़ीस जो है बेसिकली ये कोई अस्पताल अपना रेवेन्यू कमाने के लिए उन्होंने नहीं लागू की हुई है। या जहाँ जहाँ पे पार्किंग फ़ीस होती है तो ये नहीं कि उससे कोई सरकार पैसे कमाती है या बहुत अमीर होती है। बेसिकली पार्किंग फ़ीस का जो मकसद है वो ट्रैफिक को रेगुलेट करना होता है। अगर हम बिल्कुल हम कहें कि जी फ्री पार्किंग है, सो जिसका कोई अस्पताल में काम नहीं भी होगा वो भी आके वहाँ पे गाड़ी खड़ी करेगा कि ये अच्छी जगह है, यहाँ पे मैं गाड़ी पार्क कर लेता हूँ। सो ये इसके पीछे एक वजह है। सुलेमानी साहब इस पे 144 लगी हुई है और हमने एक्शन भी लिया है, मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। हमने काफ़ी स्ट्रिक्ट एक्शन लिया हुआ है, काफ़ी सारे लोगों खानका डोगरा में DPO शेखुपुरा फैसल मुख्तार की मुकामी पुलिस स्टेशन में खुली कचहरी। DPO ने साइलिन की दी गई दरखास्तों पर फौरी अमल दरामद के अहकाम जारी किए हैं। मज़ीद जानते हैं महर सरफराज की इस रिपोर्ट में। खानका डोगरा के मुकामी पुलिस स्टेशन में DPO शेखपुरा फैसल मुख्तार ने खुली कचहरी का इनेकाद किया, जिसमें सिविल सोसाइटी, शहरियों, ताजरों और सहाफ़ियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। इस मौका पर फैसल मुख्तार ने दी गई दरख्वास्तों पर फौरी कार्रवाई के अहकाम जारी किए। DPO शेखपुरा का कहना था कि अमन व ईमान कायम रखना हमारी अव्वलीन तरजीह है। DPO शेखपुरा ने SHO शाहिद रफीक को मुंशियात फरोशों के खिलाफ फौरी कार्रवाई करने का और इलाका को मुंशियात फ्री बनाने का टारगेट दिया। इनका कहना था कि नौजवानों को इस लानत में मुब्तला करने वाले किसी हिदायत के मुस्तहिक नहीं। इनका मजीद कहना था कि मुहर्रम उल हराम के महीना में फुल प्रूफ सिक्योरिटी के इंतजाम किए गए हैं। मुहाफल, मजालस और जुलूसों की सिक्योरिटी के लिए 2000 से ज्यादा पुलिस के जवान ड्यूटी सरअंजाम देंगे। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की तरफ से दाखिला मुहिम जारी है, लेकिन मरवत के सरकारी स्कूलों में कसीर तादाद में बच्चे दाखिल, वॉक और तकरीबात भी मुनक़िद की जा रही हैं। मज़ीद अहवाल जानते हैं हमारे नुमाइंदे शरीफुल्लाह मरवत की इस रिपोर्ट में। डिप्टी डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर इलियास खट्टी की क़ियादत में दाखिला मुहिम की आगाही वाक गवर्नमेंट शहीद मोहम्मद गसान खान सेंटेनियल मॉडल हाई स्कूल से शुरू हुई, जिसमें तलीमी अफसरान, स्कूल सरबराहान, असातिज़ा, बॉय स्क्वाड्स और तलबा ने शिरकत की। स्कूलों में बच्चों के दाखिले की अहमियत के पैगामात पर मबनी बैनर उठाए
शुरका ओल्ड कचहरी रोड पर मार्च करते हुए लारी अड्डे पर काजी इशफाक चौक पहुंचे, जहां पर मौलाना तमीजुद्दीन ने अपने खिताब में कहा कि तालीम का हसूल बच्चे का बुनियादी हक है। वालिदैन बच्चों को इस हक से महरूम ना करे और इन्हें वक़्त ज़ाया किए बगैर स्कूलों में दाखिल कराए। इससे कबल तकरीब में डिप्टी डीओ इलियास खटक ने दीगर तालीमी अफसरान के हमरा बच्चों के दाखिला फार्म पर दस्तखत किए और इन्हें फ्री स्कूल बैग्स दिए। उन्होंने असातिज़ा पर जोर दिया कि वो मौसम गर्मी की तातीलात के बाद स्कूल खोलने से कबल तमाम काबिल दाखिल बच्चों को स्कूलों में दाखिला यकीनी बनाए। तकरीब के बाद तालीमी अफसरान और बॉयज़ स्क्वाड्स ने स्कूल के अहाते में सादिकाबाद में असिस्टेंट कमिश्नर मोहम्मद सलीम आसी का तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल का दौरा, बादशाह डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ अस्पताल में ही सो गए। असिस्टेंट कमिश्नर सादिकाबाद मोहम्मद सलीम आसी ने फौरी एक्शन लिया और एमएस को अहकाम जारी किए। ओवरचार्जिंग पर ठेकेदार को फौरी गिरफ्तार करवाकर मोटरसाइकिल स्टैंड का ठेका कैंसिल करवा दिया जाएगा और डॉक्टर्स पैरामेडिकल स्टाफ के खिलाफ इंक्वायरी की जाए। जिम्मेदारों को किसी सूरत माफ नहीं किया जाएगा। नौशहरा में पाकिस्तान बॉक्सिंग काउंसिल के जनरल सेक्रेटरी कलीम अहमद की प्रेस कॉन्फ्रेंस। उन्होंने कहा कि आज से मर्दान स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स में एक रोज़ा बैनुल-अक़वामी बॉक्सिंग फाइटिंग मुकाबलों का इनेकाद हुआ, जिसमें पंजाब टाइटल के लिए इंग्लैंड से आए हुए सलमान शाहीन मिर्जा और जंग के मोहम्मद उस्मान में मुकाबला होगा। मज़ीद जानते हैं माजिद खटक की इस रिपोर्ट में। मर्दान स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स में मुनक़िद होने वाले एक रोज़ा बैनुल-अक़वामी बॉक्सिंग फाइटिंग मुकाबलों का आगाज़ हो गया, जिसमें 7 मुकाबलों में पंजाब टाइटल के लिए इंग्लैंड से आए हुए सलमान शाहीन मिर्जा आज़ाद और जंग से मोहम्मद उस्मान मद्दे मुकाबले होंगे। पाकिस्तान बॉक्सिंग काउंसिल के जनरल सेक्रेटरी कलीम अहमद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा को प्रमोट किया जाए। यहाँ पे जो फाइट्स होती हैं ये वर्ल्ड रैंकिंग में इनका नाम होता है, ये वर्ल्ड रैंकिंग में जाते हैं। तो कल का जो इवेंट है उसमें अप्रॉक्सीमेटली 7 फाइटें एक्सपेक्टेड हैं इंशाल्लाह जो होंगी, जिसमें एक पंजाब टाइटल है। पंजाब टाइटल में जो सलमान हैं, सलमान शाहीन मिर्ज़ा, ये इंग्लैंड से आए हैं और मोहम्मद उस्मान हैं, ये जंग से आए हैं। इनकी आपस में फ़ाइट है और उम्मीद करते हैं कि ये एक अच्छा इवेंट होगा, हेल्दी इवेंट होगा, जिसके बाद मर्दान के अंदर इंशाल्लाह मंथली बेसिस पे इवेंट होने शुरू हो जाएंगे। इसमें मैं शुक्रिया। First, I want to start off with thanking Kaleem, thanking Naveed Bhai, thanking Rashid Baloch, Pakistan Boxing Council for the opportunity to fight for this Punjab title. It's good recognition of a belt. It will get me up in the rankings. The reason why I want to box in Pakistan is obviously, I don't know if some of you know, but I've got a grandmother who is Scottish. I've got a white side. ऐसे सेहतमंदाना एक्टिविटी कराने का मकसद नौजवानों को मुआशरे में नेगेटिव सरगर्मी से दूर। न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए कोहिनूर न्यूज़।